तो फ्रेंड्स आज हमारे साथ पॉडकास्ट पर एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन 3 elite इंस्टीट्यूशन से कंप्लीट करी है, आईआईटी, IIM and NLSIU, and sir is currently working in the real estate sector. So sir, welcome to the show, and for the audience sir, can you please explain who is Ritik Yadav? Hi Viraj. Hello First of sir. all, thank you so much for giving me a chance to speak here on this platform. And first of all, congratulations to you for getting NLSIU Bangalore. Thank you so much sir. And as we all know, it's an IIT Bombay of all the law schools. It's always a dream of every law student or a law aspirant to get into NLSIU, whether it is for the undergraduate courses or for the master's courses. Moving to my introduction part, if I'll tell you about myself, so I'm Ritik. I have done my master's from Ropad and I am Amritsar in data science and management. After completing my master's, I have started working in the real estate sector. I have more than 1 year of experience in this particular sector, and currently I'm working with one of the very well-known mandate sales company in the real estate domain only in Bangalore itself. And in parallel, when I started working in real estate sector, I decided to pursue my second masters, and I started looking out for like what all courses which are there available in a hybrid mode. Then I get to know about MBL, which is being offered by NLSIU Bangalore itself. So I decided to pursue it, and recently I have finished all the exams of my first year, and then started with my classes of second year. Because all these getting into top colleges, or I would say institutions, so this is a kind of a habit which I got into, and it was all started when I had a dream of pursuing my undergraduate courses after passing my 12th grade. After that, I pursued my undergraduate in economics and commerce from University of Delhi, and in a very well-known college of South Campus of University of Delhi, Shri Aurobindo College. ओके सर। Morning, yeah. तो सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपने कौन सा प्रोग्राम किया था जिसके थ्रू आप बोथ आईआईटी एंड आईएम में पढ़ पाए? It's a great question, Viraj, because दोनों इंस्टीट्यूशन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जो मेरी प्रोफाइल में मैंने ऐड किए हैं, वो ऐड किए हैं बिकॉज ऑफ वन प्रोग्राम दैट इज एमएससी इन डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट. सो एमएससी इन डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट वो मास्टर्स प्रोग्राम है विच इज फुल टाइम 2 year एंड रेजिडेंशियल. ये प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर जो आपका होता है वो आईआईटी रोपड़ होस्ट करता है. इन द सेकेंड ईयर you will be hosted by IIM Amritsar. ओके As I've already mentioned, it's into data science and management. So data science is being taken care by IIT Ropar faculty, and then the whole management part is being taken care by IIM faculty. This is the brief about specialized program which offers you both data science and management. तो सर आपने अपनी एजुकेशन आईआईटी, आईएम और एनएलएसआईयू से कंप्लीट करी है। अब सर मतलब ऐसा फील होता है जैसे आप इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट कर रहे हो। तो इसके पीछे मास्टर प्लान क्या है कि आपने आईआईटी, आईएम अब आप लॉ भी कर रहे हो, तो व्हाट इज द मास्टर प्लान? Bilkul. Viraj, it's a very good question. And if I tell you about the idea of pursuing and commerce in my undergraduation, then data science and management in my primary masters from IIT and IIM, and then another masters which I'm pursuing right now from NLSIU Bangalore in business law. So the idea is something like ki I always wanted to have everything, each and everything in my profile, which is being in demand in current years, or let's say if I talk about the economics and commerce. So I think these both are the pillars of any organization which is into, let's say, services or manufacturing or any other category after completing each of my degrees. So अगर मैं बात करूं मेरी अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, once I studied the market, and वो market study करने के बाद then I get to know कि boss economics and commerce से नहीं होगा कुछ भी. Considering the future ahead of AI and data science, I decided to pursue this particular program, that is data science and MSc in data science and management. And after that, when I got into the corporate sector, I started working in April 2025. And then I get to know about the various kind of
the legalities and all of the legal part of the real estate domain, as well as the legalities of other different sectors. And I was already like scanning the profiles of people who are at the top of these sectors. Okay. So even in my organization, there were many seniors who had like pursued doctorate from very good institutions, and many of them have already had this law wala angle in their profile. Okay. So always used to ideate like what I would say what all things came in their mind when they decided to pursue those degrees. And then I got an answer key to climb this corporate ladder, one must have a knowledge of each domain, whether it's economics, commerce, or data science, or management, or law. When you work in a corporate, your seniors, your bosses looks onto you as an you are asset for that company, right? So if an asset will have more value, then definitely the organization will take care of you, right? And they'll always look onto you that इस इंसान को हमें प्रमोशन देना है, इस इंसान को हमें अप्रेजल देना है. सो आई थिंक यही एक बेसिक आइडिया है बिहाइंड परसुइंग ऑल दीज डिग्रीज. ओके, तो सर आपने पढ़ाई आईआईटी एंड आईएम दोनों में करी। आईआईटी में आपने डेटा स्ट्रक्चर्स को समझा एंड आईएम्स में आपने मैनेजमेंट को समझा। तो सर वहाँ की फैकल्टी और आपका जो पीयर ग्रुप था वो चेंज हुआ, आपका वहाँ पे और भी लोगों से इंटरेक्शन हुआ होगा, तो आपको क्या माइंडसेट में चेंज लगा एक आईआईटी के व्यक्ति में और एक आईएम के व्यक्ति में? बिल्कुल सही. अगर मैं बात करूं दोनों इंस्टीट्यूशंस की, तो दोनों की ही अपनी स्पेशलाइजेशंस हैं एंड दोनों का ही अपना एक कल्चर है, राइट? एंड बोथ ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैव देयर ओन सेट ऑफ पीपल हु आर स्पेशलाइज्ड इनटू डिफरेंट डिफरेंट एरियाज. सो ओके। अगर मैं बात करूं आईआईटी की, तो IIT is all known for their technical knowledge base, right? And if I talk about the IIMs, it's all about the management. Both institutions have their own culture and their own specialization. So IITs बिल्कुल टेक्निकल जो हमारे सब्जेक्ट हैं, कोर्सेज है, स्पेशलाइजेशन है, उनके लिए बहुत फेमस है. एंड अगर मैं IIMs की बात करूं, तो वो पूरा जो मैनेजमेंट का एरिया है वो कवर करता है. एंड टॉकिंग अबाउट द फैकल्टी एज वेल एज द crowd, student societies, and everything. So IITs, as I've already mentioned, is all about the technical part. I was in the computer science and engineering department. ओके। तो IIT में आपके जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से रिलेटेड टू केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और आई वुड से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सो ऑल ऑफ दैट इज बीइंग कवर्ड. एंड मैनेजमेंट में हमारे पास आता है MBA के सब्जेक्ट्स, MBA के कोर्सेज. इवन व्हेन पर्सन इज डूइंग जॉब और वर्किंग सम इन ऑर्गेनाइजेशन, देन उस सेगमेंट के लोगों के लिए हमारे पास होते हैं MDPs, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एंड executive MBAs. So this is how I can see that both IIMs and IITs are different. आपको सर पर्सनली क्या बेटर लगा? अगर मैं बात करूं मेरे प्रेफरेंस की या फिर क्या मुझे क्या अच्छा लगा, सो मैं बोलूंगा कि दोनों की अपनी ही एक इम्पोर्टेंस रही है मेरे प्रोफाइल को एनहेंस करने में, एज वेल एज मेरा एक को करिकुलर डेवलपमेंट में, राइट? बिकॉज व्हेन आई डिसाइडेड टू परस्यू दिस प्रोग्राम, सो मेरा एक यही मोटिव था कि जब मुझे दोनों पावर्स मिलेंगी, लाइक आपने मेंशन किया जेमस्टोन्स के बारे में, यस, सो इन्फिनिटी जेमस्टोन्स स्टोन्स। जितने ज्यादा होंगे प्रोफाइल में उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, सो दैट यू कैन क्लाइम दैट कॉर्पोरेट लेडर इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ओके, एंड सर मेरा क्वेश्चन था कि पर्सनली आपको क्या पसंद है इन द सेंस कि एंजॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से? ओके, सो आपका ये मतलब था. तो विराज, अगर मैं अपने पसंद की बात करूं, तो जो मुझे कैंपस लाइफ है वो मुझे IIT की काफी बेटर लगी IIM से. बट देन IIM की अपनी एक इम्पोर्टेंस है मेरे प्रोफाइल में, बिकॉज वहां पे मैंने देखा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है. राइट। क्योंकि हर एक स्टूडेंट की लाइफ में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत टू कंप्लीट और मे बी टू परस्यू एनीथिंग इन देयर लाइफ, IIM ने मुझे टाइम मैनेजमेंट सिखाया, जो कि मेरी लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट प्ले आउट करती है. एंड देन
अगर मैं आईआईटी की बात करूं, सो इट वाज मोर अबाउट फन एंड कैंपस लाइफ। ओके सर, आपका ये जो प्रोग्राम है मास्टर्स ऑफ साइंस, इस प्रोग्राम में एंटर करने के लिए हमें कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, और जो इंटरव्यू रहता है उसमें सिलेक्शन के लिए कैसी प्रोफाइल ज्यादा प्रेफर करते हैं? सो विराज, अगर मैं बात करूं इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो जो आपकी प्रोफाइल है वो मैटर करती है आपकी टेंथ स्टैंडर्ड से लेके एंड देन आपकी ग्रेजुएशन में आपके क्या मार्क्स रहे वहां पर। सो अगर मैं लिस्ट डाउन करूं उसको वन बाय वन, सो टेंथ के मार्क्स, देन ट्वेल्थ के मार्क्स, then you have your graduation के marks, and then of course how well you have performed in your CAT exam, and then of course the interview. So interview is all about your critical thinking ability and what is your past experience, whether it's related to your work experience, or if or you have pursued your this undergraduation. So the interview panel will focus more on your critical thinking ability and what you can do best after joining this program. ओके सर, अभी आप लाइफ में जिस पॉइंट पे हैं वो कई सारे लोगों का ड्रीम होता है, तो आपको यहाँ पहुँच के कैसा लग रहा है, एंड आपका एक एवरेज वीकली शेड्यूल कैसा दिखता है? ये अगर बताऊं कि आज मुझे कैसा लग रहा है, तो मैं अपने एक वर्जन को कंपेयर करूंगा मेरे 5 साल पहले वाले वर्जन से। इसमें मैं यही कहना चाहूंगा, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। एंड अगर मैं अपने शेड्यूल की बात करूं, मेरा दिन शुरू होता है कुछ एक्सरसाइज से, जिसमें मैं कंसिस्टेंट हूँ पिछले कुछ दिनों से, एंड देन आफ्टर दैट मैं ऑफिस जाता हूँ, एंड देन आई कंप्लीट ऑल ऑफ द थिंग्स विच आर देयर टू कंप्लीट अ बिग प्रोजेक्ट। मेरा एक वर्किंग स्टाइल ऐसा है कि मैं टास्क पर कम एंड प्रोजेक्ट पर ज्यादा काम करता हूँ एंड उस पर ज्यादा फोकस करता हूँ, राइट। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दोज थिंग्स to get a project completed, I come back to my home. Then I have my food. I watch some YouTube videos, some podcast on my YouTube. If there is any work which is left, then I complete that particular thing, and then I go to sleep. तो ओवरऑल सर, आप अपने डे को ये कहोगे कि बहुत हेक्टिक है या इट इज मैनेजेबल? मैं इसको मैनेजेबल बोलूंगा, बिकॉज अगर मैं इसको आज से ही हेक्टिक बोलना शुरू कर दूं, तो अभी तो आई थिंक मैं इसको ऐसे देखूं तो अभी मुझे और 35 ईयर्स काम करना है, राइट। सो राइट। अगर मैं इसको अभी से ही हेक्टिक मानते हुए चला जाऊंगा, तो फिर मैं आगे कैसे काम कर पाऊंगा, राइट। एंड सो आई सर, थिंक यही एक थॉट है कि जो मुझे डेली मोटिवेट करता है और मुझे कंसिस्टेंट रहने में मदद करता है। आर यू रियली एंजॉयिंग व्हाट यू आर डूइंग? Yes, of course. I'm enjoying my personal life as well as my professional life, ओके। because मैं बोलूँगा कि मेरी पर्सनल लाइफ में मुझे मेरे बैचमेट्स मिले हैं, मेरे फ्रेंड्स मिले हैं, एंड मेरी फैमिली है जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट द प्रोफेशनल लाइफ, सो मेरे जो कॉलीग्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, एंड इवन जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। And because of them only, I'll definitely grow more in my personal as well as in my professional life. सर, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो आप मतलब उसमें क्या काम करते हैं? आप कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करते होंगे, तो आप उनको कैसे सॉल्व करते हैं? विराज, अगर प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूं और चैलेंजेस एंड देन उनके सॉल्यूशंस की बात करूं, तो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा मेरा एक रीसेंट प्रोजेक्ट जो मैंने कंप्लीट किया है। इसमें मुझे एक कॉन्टेक्ट सेंटर सॉल्यूशन डिप्लॉय करना था मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, एंड देन द चैलेंजेस वर नॉट ओनली देयर while I was deploying that particular contact center solution, but the main challenges were related to the adoption by the people for that particular solution, राइट। वो चैलेंजेस कुछ ऐसे थे कि कुछ टेक्निकल भी थे एंड कुछ मैं बोलूंगा कि बिहेवियरल भी थे, बिकॉज आज की डेट में जब भी हमारा कुछ चेंज आता है ना, सो बहुत सारे लोग होते हैं कि वो उन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। मे बी उनके पास एक कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है इस वजह से, या फिर कभी कभी एक होता है कि कंफर्ट जोन में रहना, राइट। सो मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था। But then I motivated those people because ultimately they are my colleagues. I have the hand holding, right? So मैंने हैंड होल्डिंग किया, मैंने जो हमारे सॉल्यूशन पार्टनर हैं उनकी सपोर्ट ली, मल्टीपल ट्रेनिंग सेशंस कराए, एंड देन that's how we overcome those challenge. ओके सर। सर, इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक 20 ईयर ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट आता है, वो डरा हुआ है कि एआई टेक ओवर हो रहा है, सब जगह टैक्स की जॉब्स आ रही हैं, और उसे चाहिए एक सेफ करियर, तो आप क्या एडवाइस दोगे? मेरी एडवाइस यही रहेगी कि एआई इज नॉट समथिंग कि उससे आप डरो। देयर आर मल्टीपल वेज टू लर्न कि हाउ टू वर्क विद एआई या फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी।
और मे बी अगर कोई स्टूडेंट है जो लर्निंग है, मे बी फॉर्मल जो उसके कोर्सेज हैं उसकी लर्निंग, या फिर एक क्यूरियोसिटी रहती है सेल्फ लर्निंग की, सो यस। उसमें भी एआई बहुत हेल्पफुल है, राइट। सो ओके। मैं यही एडवाइस दूंगा कि एआई से डरे नहीं, को साथ लेके अपना टास्क या फिर अपनी जो लर्निंग का एक प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखें, बिकॉज स्पेशलाइज्ड टूल्स भी हैं एआई के फॉर लर्निंग एज वेल एज टू कंप्लीट देयर फॉर्मल टास्क, और इफ देयर इज anything which is being given to them by their faculty or maybe their seniors in the corporate So sectors. can you recommend some tools? Yeah, even for a learning purpose, even I prepared my whole syllabus of Masters of Business Laws first year exams through Notebook LM itself. So Okay. Notebook LM is a very good tool with which you can just summarize summarize all of your कोर्स मटेरियल्स एंड एवरीथिंग, राइट। Okay. एंड अगर मैं बात करूं टास्क कंप्लीट करने की, या फिर कुछ आपको एक मैं बोलूंगा एक प्रोजेक्ट असाइन किया है जो आपको कंप्लीट करना है, सो फॉर दैट वी हैव क्लॉड इन द मार्केट, एंड उसके तो बहुत सारे न्यू न्यू मॉडल्स आते रहते हैं, वो पॉलिश होते रहते हैं डे बाय डे। उन दोनों चीजों को साथ लेके, लाइक लर्निंग एज वेल एज like the productivity in your work, so I would say it's a great match, and you can do well in your life with, like, if you'll work with the AI, definitely. सर आप मास्टर्स इन बिजनेस लॉ एनएलएसआईयू से कर रहे हैं, अब मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि इंस्टीट्यूशन इतना सारा काम देता है करने के लिए, इतना सारे रीडिंग्स देता है, एंड सर आप जॉब भी कर रहे हैं, तो आप इन दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे कर रहे हैं? क्लासेस मैनेज करना थोड़ा आसान है एनएलएसआईयू की। अगर मैं बात करूं क्लासेस के शेड्यूल की, सो मेरी जो क्लासेस हैं वो वीकेंड्स पर होती है, एंड इवन जब अटेंडेंस मैंडेटरी ना हो तो मैं उन सेशंस की रिकॉर्डिंग को भी देख सकता हूँ कभी भी उन क्लासेस के बाद, जैसे ही मुझे टाइम लगता है कि अगर मैं चाहूँ रिकॉर्डिंग्स को देखना, लेट्स से कभी इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में, और मे बी लाइक फिर मेरे एग्जाम्स जब चल रहे हो तब भी मुझे वो वीडियोस को बार बार रेफर करना एक मेरे लिए एक हेल्पफुल चीज रहती है। एंड इवन लाइक आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि नोटबुक एलएम, सो यस। नोटबुक एलएम क्या करता है, नोटबुक एलएम उस पर्टिकुलर क्लास रिकॉर्डिंग की भी समरी बना देता है। ओके। So yeah, so that's how I use AI in my learning process. सर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर ऑफ साइंस आईआईटी रोपर एंड आईआईटी अमृतसर से किया, अब किसी स्टूडेंट को लगता है कि एमबीए इज बेटर, एंड फॉर ए स्टूडेंट जो जस्ट अभी ग्रेजुएट हुआ है, तो उसके लिए एमबीए ज़्यादा बेटर है या मास्टर ऑफ साइंस, एंड दोनों के क्या बेनिफिट्स हैं? राइट, सो एमबीए आपको पूरा एक मैनेजमेंट की साइड लेके जाएगा, जिसमें आपके कोर्सेज होंगे रिलेटेड टू सेल्स मार्केटिंग, अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंड देन आपका बिजनेस एनालिटिक्स, बिकॉज अभी जो एमबीए के कोर्सेज हैं वो और फॉर्मुलेट हो गए हैं टुवर्ड्स एनालिटिक्स पार्ट, राइट। ओके। बट देन अगर मैं बात करूं मेरे प्रोग्राम की, लाइक एमएससी इन डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट की, so there you will get the core learnings from the data science aspects, or I would say the technical aspects will be much more covered in your MSc in data science and management. And if I talk about the management part of this particular degree, then here also you will get to know about all the sales, marketing, people management, human resources, product management, everything. So I think it's a fusion, it's a great fusion of both management as well as data science. And seeing the future of AI and data science, I think every student must learn about AI, data science with the management also. But then if someone is pursuing MBA, then that is also good, but they should also pursue some let's say executive courses related to data science and AI. सर जब कोई एवरेज व्यक्ति सुनता है डेटा साइंस के बारे में, तो उन्हें लगता है कि वो कोई नेटफ्लिक्स में काम कर रहा होगा या किसी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म में काम कर रहा होगा, बट हाउ आर यू इम्प्लीमेंटिंग इट इन द रियल एस्टेट सेक्टर? Okay, it's a very good question, and आंसर अगर मैं करूं कि डेटा साइंस रियल स्टेट में कैसे काम आता है, एंड मैं फिर उसको और पर्सनलाइज करके बताना चाहूंगा कि विराज डेटा साइंस मुझे हेल्प करता है एक तो कस्टमर प्रोफाइलिंग में। कस्टमर प्रोफाइलिंग इन द सेंस कि वो कस्टमर कौन है, कहाँ से आता है, वो क्या करता है, एंड उसकी इनकम क्या है और उसकी एथनिसिटी क्या है। सो ये तो बेसिक मेरे 4-5 पॉइंट्स हैं जो एक कस्टमर की प्रोफाइल क्रिएट करता है। एंड देन हर एक कस्टमर प्रोफाइल एक पैटर्न बनाने में हेल्प करती है।
राइट? कि लेट्स से मेरी एक मेरे कस्टमर की इनकम वो एक ऐसे इनकम ग्रुप से आता है जो कि है लेट्स से 20 to 25 lakhs पर एनम, राइट? राइट। सो क्या 20 to 25 lakhs पर एनम वाले जो मेरे बाकी कस्टमर्स हैं, वो भी क्या सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं? क्या वो भी सेम टाइप ऑफ मैं बोलूंगा कि जगह पर जाना पसंद करते हैं? तो ये सब है जो डेटा साइंस हेल्प करता है मुझे फाइंड आउट करने में, मेरे डेली वर्किंग जो है स्टाइल है उसमें मतलब बेसिकली इम्प्रूवमेंट सर करने आप के लिए पैटर्न्स समझ लेते हैं डेटा हम्म, डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू। ऐसा सर वन लास्ट क्वेश्चन, आपको इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस है सर एंड यू आर वर्किंग एट अ हाई लेवल। तो सर आने वाले 10 साल 15 साल में जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें क्या चेंज आने वाला है बिकॉज ऑफ एआई एंड नॉर्मली भी टीयर 1 टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में? राइट विराज, इसको मैं एक तो रियल एस्टेट डेवलपर के पर्सपेक्टिव से देखूंगा एंड इसको एक मैं कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखूंगा। बिकॉज अगर मैं बात करूं एआई की, सो मैं बात करूंगा कि जो बाइंग पैटर्न्स हैं वो चेंज हो चुके हैं स्पेसिफिकली आफ्टर this COVID time, right? Okay. So now people have started questioning about their floor plans, about the locality, about the builder, or I would say that particular real estate developer. So they are asking much more queries through AI, and AI is being already trained a lot of is being trained upon a lot of data available on the internet, right? And if I see this thing from a real estate developer's perspective, then definitely the way homes are being constructed nowadays will definitely change. Now there is a concept of smart homes, right? Yes. So smart homes is not a gimmick nowadays. So it's a basic need in metropolitan cities, right? Right. So using AI, I would say those homes will be like more intelligent and more energy efficient. सर थैंक यू सो मच, आपने इतना इंसाइट्स दिया, आपने नॉलेज अपनी शेयर करी हम सभी लोगों के साथ एंड आई होप ये पॉडकास्ट जो भी लोग देख रहे होंगे उनके काम आएगा।